Hello, everyone. Welcome to another episode of Nav Durga. And with us today in the studios, we have a lady who has been on the frontiers of the border, somebody who has been a part of the Kargil War, none other than Captain Yashika Hatwal Tyagi. Welcome, ma'am, to the show. Thank you so much for coming. Thank you so much, Hanel. What a proud privilege to be here on your show. The Thank you. privilege is ours. Thank you so much for joining. This journey of yours that whatever we shared, it's inspiring, and Kargil and all, we will come to that. First and foremost, you're looking so pretty, and happy Navratri to you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. I think this festive season makes every woman feel special. Absolutely. Now, Durga, we all feel like goddesses. Yes, absolutely. Yeah, thank you. Absolutely. So tell us, from where did the journey of this goddess start? Where were you born, ma'am? I was born in Dehradun, a small, now not so small. Earlier it used to be a small city, Ji. now capital of Uttarakhand. Ji. And I'm a very proud Uttarakhandi, born to a Fauji family. My father was in army, and we are three sisters. Okay. And as luck would have it, slowly, gradually, as we grew up in army cantonments. But when I was 7 years old, I lost my father, Oh. and we lost him in the service of the nation. And those days were very difficult of growing up without him. But we all have that Shakti Ji. in our families, you know. Ji. So my mother is the true Shakti of our family. She grew up the three daughters. जी तो आप तीन बहनें हैं. बिल्कुल तीन No, बहनें no हैं. brothers. Never felt need of any. Absolutely, absolutely. So, how did this thought of joining the army just come? Because आपके पापा थे और मतलब did you also feel कि मुझे भी करना है? Because पापा थे या how was it so? Henel, you are sum total of your experiences in life. And I think without consciously thinking about Ji. it, when I was growing up, there was conversation of father all around. Since he had fought 1962 war, 65 war, 71 war, तो हमारे घर में बातें सिर्फ फौज की होती थी. फौज की होती है. हमारे घर में मिलने जुलने वाले सिर्फ फौज के होते फौज थे. के लोग. और फौज एक फैमिली है. जी. माने when I lost my father, the entire family was taken or almost adopted by army. Okay. And I met amazing human beings in army. And so I always wanted to be like them. Unconsciously, I think I was giving feeder to my mind that I want to wear that uniform. That really happened true. And I think universe loves the stubborn heart. जी. I was a stubborn heart, wanted to wear a uniform, wanted to wear the olive greens like my father. Lovely. And I wore that. Superb. तो ये जहाँ तक हमें थोड़ा सा आइडिया है कि women were not allowed, right? पहले in the army. So how? You are very right. Women entry into Indian Armed Forces started in the year 1993. Before that, we did not have girls in army. जी. Only doctors were there. अच्छा. Only doctors and nurses. It was only in the year 1993 that women's special entry scheme started. Okay. And with that, the women started to enter And this amazing organization called Indian Armed Forces. And I joined army in the year 1994. okay. So those were very initial times. I'm sure you would have had a lot of challenges, and initial times it would have been very new to, I'm sure, even the army also, the men in the army, to have women along with them, on the various frontiers and fields. You have asked a very, very interesting question, Henna. Very interesting. See, girls were coming into army. जी. And क्योंकि for आज तक girls, कभी हुआ ही नहीं था लड़कियों कि के लिए हाँ, नया नहीं था. हाँ, लड़कों के लिए नया लड़कियों था. के लिए नया नहीं हाँ, था क्योंकि उनके लिए उनकी जिंदगी का पैशन था. Passion था. वो वर्दी पहनना चाहती थी और वो फौज में आई. जी. ये फौज में लड़कों के लिए नया था, मेल ऑफिसर्स के लिए नया था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले लड़कियां फौज में नहीं देखी थी. जी. और आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि वो बहुत शुरुआती दौर था. जी. पॉलिसीज बन रही थी, जी. लड़कियों की कैपेबिलिटी पता नहीं थी, लड़कियों को कहाँ कहाँ पोस्ट किया जाएगा ये नहीं पता था, लड़कियों के साथ किस लेवल तक हम आगे चैलेंजेस ले सकते हैं. पर धीरे धीरे करके जैसे समय बीतता गया, लड़कियां खुद को प्रूव करती गईं, एक एक करके सारे सीलिंग्स क्रैश होती गईं. Wow. एंड आई थिंक गर्ल्स वर देयर, जी. destined to be there,
ये सिर्फ एक मैटर ऑफ टाइम था. एंड यू सी नाउ 30 years डाउन द लाइन लड़कियों को परमानेंट कमीशन मिल रहा है. यही नहीं, अब लड़कियां अपनी अपने यूनिट्स को कमांड कर सकेंगी अगर वो सभी पैरामीटर्स पे खरी उतरती हैं तो. राइट. तो पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई थी? हाउ वेयर डिड यू फर्स्ट जॉइन इन? माय फर्स्ट पोस्टिंग वाज इन बठिंडा. अच्छा. और उसके बाद मेरी एक पोस्टिंग आई जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी. दैट वाज अंडर ऑपरेशन राइनो इन नॉर्थ ईस्ट. तो नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में हमारी फौज बहुत फैली हुई है. और उस फौज के लिए लॉजिस्टिक्स सप्लाई को इंश्योर करना, आंधी, पानी, बरसात, तूफान, कोई मौसम होने दो, सप्लाई चेन रुकनी नहीं चाहिए. क्योंकि एक सिपाही तभी तक लड़ाई लड़ सकता है जब तक उसके पेट में खाना है और उसके बंदूक में गोली है. और ये काम लॉजिस्टिक्स का है. सो एज लॉजिस्टिक्स ऑफिसर ये मेरा काम था कि अपने सिपाहियों को लड़ाई के लिए हर समय तैयार रखें. तो नॉर्थ ईस्ट में मेरी पोस्टिंग हुई. और फिर उसके आगे मैंने फिर एक डिफिकल्ट एरिया पोस्टिंग के लिए वॉलंटियर किया जो था एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट और हाई एल्टीट्यूड एरिया. जी, I'll come to that definitely. तो ये आपके बहुत आसानी से जितना आपने एक्सप्लेन कर दिया, आई वॉज हियर, आई एम श्योर इन दोज टाइम्स इतनी आसानी से आई एम श्योर दिस थिंग्स नहीं हुए होंगे. एब्सोल्युटली. तो मुझे बताइए कि जब आप इनिशियली गए इन द आर्मी, what are the main challenges as a lady that you felt कि ये हमारे साथ है? men थोड़े से comfortable थे obviously, सालों से men have been there. So अब कितनी, how many women were there initially when you went? इनिशियली खाली 25 लड़कियों का बैच लिया जाता था. यानी हजारों लड़कियों के बीच से, लाखों करोड़ों लड़कियों के बीच से सिर्फ 25 लड़कियों ने आना है. और जब आप चैलेंजेस की बात करते हैं तो आप अप्रिशिएट करोगे हेनल. एक सीन इमेजिन करिए आपके माइंड में. लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है. यू आर रनिंग 15 km. अच्छा. 15 किलोमीटर आप दौड़ रहे हैं. आपने बैटल फटीग्स पहने हुए हैं. 25 kg का बैटल लोड आपके ऊपर है और आप दौड़ रहे हैं. एंड यू आर हैविंग पीरियड्स. जी. और आप दौड़ते जा रहे हैं. किसी को नहीं पता चल रहा आप कितने चैलेंज में दौड़ रहे हैं, आप कितने दर्द में दौड़ रहे हैं, आप कितने कष्ट में दौड़ रहे हैं. लेकिन वो लड़की जो हर कदम अपने शरीर के साथ लड़ रही है और आगे दौड़ रही है, मुझे लगता है उस हर लड़की को सैल्यूट होना चाहिए जो ट्रेनिंग के दौरान, चाहे स्विमिंग है, चाहे मार्चिंग है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, वेपन ट्रेनिंग है, बॉक्सिंग है, हॉर्स राइडिंग है, किसी चीज को करने से पीछे नहीं हटती और लड़कों को बराबर की टक्कर देती है. तो जब आपने मेरे से चैलेंज पूछा, आई पास्ड आउट फ्रॉम अकेडमी विद अ मेडल ऑफ मेरिट, स्टैंडिंग सेकंड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट अमंग्स्ट बॉयज एंड गर्ल्स. फैंटास्टिक. सो ये एक जुनून है. जुनून के साथ जब आप आगे बढ़ते हो तो कुछ भी होने दीजिए, आप रुकते नहीं. राइट. सो आप जिस जुनून से गए थे, आई एम श्योर द मेन जो वहाँ पर थे, दे ऑल वुड बी लिटिल टेकन अबैक कि सच पावरफुल वुमेन आ गई है अब. सो I would like to ask another question. Did you make friends in the army? With men? How was the whole thing? I'm sure your life would have taken... हेनल, फौज में एक वर्ड है जिसको हम बिल्कुल एक दिल के बहुत करीब बोलते हैं. वो है कमरेडरी. राइट. यानी भाईचारा. यानी इकट्ठा रहना. क्योंकि आपको ये सोच के जिंदगी बितानी है कि हम किसी मिशन में जा रहे हैं और अगर सामने से गोली आती है तो मेरे साथी की गोली मुझे लेनी है और मेरी गोली मेरा साथी ले सकता है. और वो चाहे आपका कलीग है और दे कैन बी द मैन यू कमांड. यू आर देयर एज अ लीडर, यू आर देयर एज अ टीम वर्कर. और फ्रेंड्स तो ऐसे हैं कि मुझे लगता है फौज की नौकरी में हम अपने खून के रिश्तों से ज्यादा बढ़कर रिश्ते बनाते हैं. जी, ऑफ कोर्स. एंड आई थिंक आई हैव मेड सम अमेजिंग रिलेशंस इन दिस. एक और रिश्ता आपका बहुत अच्छा बन गया है जी. दैट इज आपके बेटर हाफ. yes, thanks for asking that question. So tell us, how did you and आप give us some idea. Was it a love story on the battlefield या कहाँ मिले आप लोग? नहीं, it was a love story straight out of books. अच्छा.
आई थिंक आई मेट माई हस्बैंड व्हेन आई वाज जस्ट आउट ऑफ स्कूल. जी मैं स्कूल से निकली थी, मैं उनसे मिली. जी वो उस समय फौज में अफसर थे. और मेरी माँ ने मुझे पहले से ही बोला हुआ था कि घर में शादी की कोई बात नहीं होगी. अच्छा पहले अपने आप को नौकरी के लायक बनाओ, अर्न योर फर्स्ट सैलरी, उसके बाद घर में शादी की बात होगी. वो चाहती थी कि मेरी बेटियां सेल्फ रिलायंट बने, जी उसके बाद शादी करें. और बिल्कुल सही था. मेरी फौज में नौकरी हुई और उसके बाद जो मेरे हस्बैंड हैं कर्नल त्यागी, वो इंतज़ार कर रहे थे वो 5-6 साल मेरा. जी और बस फिर हमारी शादी हुई. और शादी तो ऐसी जिंदगी का एक तरीका बनती चली गई. जिंदगी इतनी अच्छी निकली. और बहुत कम ऐसा होता है कि वही मोमेंट आपके हस्बैंड ने जिया हो, वही मोमेंट आपने जिया हो नौकरी में. कारगिल की लड़ाई में हम दोनों साथ थे. हम दोनों पोस्टेड थे. ऑफ कोर्स हमारी शादी हो रखी थी. वो आगे फ्रंट पे लड़ रहे थे, मैं लॉजिस्टिक्स ऑफिसर के तौर पर थी. और लड़ाई का वो एक एक मोमेंट जो उन्होंने जिया वो मैंने जिया. और आज जब हम दोनों बैठते हैं जैसे एकदम बातें करते हैं फौज की, तो ऐसे पार्टनर्स बहुत कम होते होंगे जो बैठ के फौज के किस्से एक दूसरे को सुनाते हैं. वो फ्रंट पे क्या कर रहे हैं और आपने बैक एंड, वाओ क्या ब्यूटीफुल स्टोरी. तो ये पार्टनरशिप फॉर लाइफ है. कारगिल की हम जब बातें करते हैं फॉर अस, जो हम यहाँ अच्छे घरों में बैठे हैं, सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, और जब आप ऑन द फ्रंट बॉर्डर पर होते हैं, वी कैन नॉट कंपेयर वो जो फीलिंग जो आपकी वहाँ होती है. आई एम श्योर आपने जो मोमेंट जिया है, आई एम श्योर यू वुड हैव लॉस्ट ऑल्सो फ्यू पीपल इन आपके पहचान के एंड दैट. सो आफ्टर द वॉर, डिड द वॉर चेंज यू एनीवेयर समथिंग, या मतलब कुछ उसके बारे में? बिकॉज फॉर अस, हम सिर्फ पढ़ते हैं उस वक्त तो इतना सारा इंटरनेट नहीं था, नथिंग वॉज देयर. So somewhere you have lived there, and did that change your life? I'm sure it would have been impactful ekdam in the full family. Hanal, it's a very serious question. जी. Because this battle changed me forever. अच्छा. मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी के 2 हिस्से हैं, एक कारगिल के पहले और एक कारगिल के बाद. क्योंकि कारगिल के दिन बहुत हमारे लिए बहादुरी भरे थे, लेकिन साथ ही साथ बहुत लॉस भी था. 535 से ज़्यादा सोल्जर्स को हमने खोया. मैंने पता नहीं कितने क्रिमेशंस अटेंड किए हैं. मैंने फर्स्ट हैंड वो परिवारों को देखा है जिन्होंने अपने प्यारे खोए हैं. और एक फौजी होने के नाते, एक फौजी की बीवी होने के नाते, मैंने बहुत क्लोजली इन सब चीज़ों को महसूस किया. और हम अपने घरों में बैठ के कहते हैं लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई ख़त्म हो गई. लेकिन वो परिवार जिन्होंने अपने खोए होते हैं, उनके लिए वो लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती. जिंदगी भर वो ज़िंदगी भर चलती है. जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे फादर ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी, अंत में हमने जब उन्हें खोया, हम तो आज तक उस चीज़ से निकल नहीं पाए. जी. वो थॉट दिमाग में हमेशा है, फादर होते तो ज़िंदगी कैसी होती. तो कितने बच्चे यतीम हो जाते हैं, कितने बच्चे रह जाते हैं. लेकिन फौज कभी अकेला नहीं छोड़ती. ये भी एक खूबसूरती है. फौज हमेशा जो अपने सिपाही हैं, जो अपने ऑफिसर्स हैं, उनके साथ जब ऐसा कुछ हो जाता है तो उनके पीछे जो छूटते हैं उनको परिवार की तरह अपना लेती है. सो आई एम वेरी ब्लेस्ड. ये बहुत बड़ी ऊपर वाले की एक सिर पे हाथ है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती हूँ. जी, फैबुलस. सो आपने, आई एम श्योर फ्रंट पे आपके हस्बैंड सर जाते थे जब, तो इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट फीलिंग. एंड उस वक्त यू वुड इवन नो कि वो वापस आएंगे नहीं आएंगे. लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन. हाउ डिड योर फैमिली, एंड क्योंकि आप दोनों जंग पर है, समटाइम्स क्या होता है कि जैसे अब पेरेंट्स अगर वन हस्बैंड हो या एक वाइफ इज देयर, एग्जाम्पल वन, यहाँ पर तो आप दोनों है. सो बोथ आर ऑन द बैटल फील्ड. सो how did the family see that? How did they look at that? कहीं पर ऐसे नहीं था कि आप एक ही जाइए. Did your husband would have, मतलब सर ने आपको कहा होगा कि you do not, I will be there in the front. Both are at risk. दोनों फौजी हैं जी. और जब आप वर्दी पहन लेते हैं तो आपके पास वो आपकी जिंदगी है, वो आपकी आइडेंटिटी है.
मेरे हस्बैंड जंग पे गए। एक बीवी के तौर पे मेरा दिल उनके तरफ लगा हुआ था, मेरी प्रेयर्स उनके साथ थी, मेरा दिमाग उनके साथ लगा हुआ था। मैं एक छोटे बच्चे की माँ थी, तो मेरे दिमाग में ये सवाल भी था कि उसके पापा सही रहने चाहिए। आई वॉज 5 months प्रेग्नेंट। मेरे पेट में एक अनबॉर्न Born बच्चा baby is था, there. मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली थी, और मुझे उस बच्चे के लिए था कि क्या ये अपने पापा को देखेगा। पर आप भी तो थे वहीं पर। और लेकिन वही मैं बता रही हूँ आपको, इन सब रिश्तों से बड़ा था कि मैं एक फौजी ऑफिसर हूं जो इस समय देश के लिए लड़ रही है, जो अपनी सेना के लिए लड़ रही है, और उसके सामने ये सारी चिंताएं कुछ भी कहीं सामने नहीं आई। सो ये एक थॉट है, और मैं वही कहती हूँ कि ऊपर वाले का सिर पे हाथ है कि लड़ाई के बाद सब ठीक ठाक रहा, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। लेकिन उस पल में मेरे सामने मेरी वर्दी थी, मेरे सामने मेरा काम था, और मुझे ये पता था अगर मैं अपना काम सही से नहीं करूंगी, दिस इज अ मोमेंट ऑफ नेशनल ग्लोरी। जी तो हम सब कुछ न्यौछावर कर सकते थे जी उसमें। करेक्ट। अभी हमने आपको जब वी हैड आस्क्ड यू फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, तो मैम का यही था, आई एम फ्रॉम इंडिया। सो ये एक फौजी ही कह सकता है, बिकॉज व्हेन वी आस्क सिटीजन्स हमारे जैसे, तो हम कह देते हैं हम यहाँ से यहाँ से यहाँ से है। But a Fauji has rightly said, where I come from, I am from India. So I think a big kudos for that. And I'm sure Thank we you. cannot compare the Fauj and the army with the citizen. You all are fantastic there. So आप बताइए then, how was life after the war? Family was together, and then Yes. where did you all stay? फैमिली वॉज टुगेदर आफ्टर द वॉर, और उसके बाद लगा कि जिंदगी वापस से अभी चलने लगेगी। लेकिन उस समय लड़कियों के लिए फौज में परमानेंट कमीशन नहीं था, अच्छा। तो मुझे फौज छोड़नी पड़ी। मुझे लगता है मेरे लिए वो जिंदगी का सबसे मुश्किल डिसीजन था। और मुझे अभी भी याद है, मेरा आखिरी दिन फौज में था, मैंने आखिरी दिन वो वर्दी पहनी थी, और मैं घर वापस आना ही नहीं चाहती थी ऑफिस से। जी मुझे लगता मुझे घर आके ये वर्दी बदलनी पड़ेगी, और फिर मैं कभी इसको नहीं पहन पाऊंगी। सो आई केप्ट सिटिंग इन माई व्हीकल एंड आई टोल्ड माई ड्राइवर कि आप गाड़ी घुमाते रहो, आज हम घर जाएंगे ही नहीं। और पूरे रास्ते में अपनी वर्दी को पकड़ के ऐसे बैठी रही और रोती रही और रोती रही। लेकिन घर तो जाना था ना। जी घर पहुंचे, वर्दी बदली हुई। उस दिन मुझे लगा कि शायद मेरा फौजी कैरियर ओवर हो गया है। लेकिन फिर मुझे समझ में आया धीरे धीरे करके, जैसे जिंदगी आगे बढ़ी, कि फौजी यहाँ है, दिमाग में फौजी दिमाग में है, अच्छा। फौजी एटीट्यूड में है। वर्दी है या नहीं है, Absolutely. अगर मेरे अंदर वो वॉरियर माइंडसेट है, जी। वो एटीट्यूड है, तो कुछ भी होने दो, You will be a Fauji मैं फौजी all ही your रहूंगी। life. तो बस Absolutely. So any incident, कोई कारगिल वॉर की कोई एक इंसिडेंट आप कोई शेयर करना चाहे, your personal in the logistics, because आप you were handling that somewhere. एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया था। लद्दाख में, अच्छा आपको ऐसे बताती हूँ, जब हमें सामान आगे भेजना होता है पोस्ट्स जी, के ऊपर, जी। तो पोर्टर्स लेके जाते हैं। पोर्टर यानी लोग होते हैं उधार। जो अपने कंधे पे कंधे सामान पर। लेके ऊपर जाते हैं, क्योंकि कई बार उतनी हाइट्स पे या तो सामान हम खच्चरों के ऊपर भेज सकते हैं या इंसानी पीठ के ऊपर पीठ भेज के सकते ऊपर। हैं। इतने पतले पतले रास्ते हैं कि गाड़ियां नहीं जा सकती किसी भी तरह की। जब कारगिल की लड़ाई छिड़ी तो एकदम बहुत सारी फौज आई, बहुत सारी डिप्लॉयमेंट्स हुई। अब हमें ये सामान जो आगे भेजना है, हमारे पास पोर्टर्स कम पड़ गए थे, अच्छा। तो सामान आगे कैसे जाएगा। सो देयर वाज अ कॉल गिवन बाय इंडियन आर्मी कि हमको कुछ पोर्टर्स की जरूरत है, और 2 दिन के बाद हमें पोर्टर्स चाहिए। एंड वी थॉट कि हमें शायद 30 लोग मिलेंगे, 40 लोग मिलेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगले दिन वहां 300-400 लद्दाखी लड़के खड़े थे। वाओ। एंड दे सेड हम लेके जाएंगे, और ये हमारा काम है फौज के लिए। Superb. Wow. आप देखिए, दीज आर अनसंग हीरोज। Absolutely.
I think the way you are saying, it's giving goosebumps. यहाँ बैठे बैठे हमें, I'm sure आपने वहाँ क्या किया होगा, no doubt. Let's take to little different side. Otherwise, we're getting very emotional यहाँ पर. Absolutely. So your sisters, tell us about आपकी sisters. Are they also in the forge? Yes. Yes. Okay. We are 3 sisters, as I told you. जी. So my elder sister is a doctor, जी. and she worked with naval hospitals. Okay. And she got married to a naval officer. Naval officer. Okay. I came into army, and I got married to an army officer. And my younger sister is a serving Air Force officer, and she is married to an Air Force officer. Wow. Okay. So you see, So आपने तीनों ने एक एक संभाल लिया है. हम तीनों ने एक all the 3 sisters, एक वायु, एक पृथ्वी और एक जल. बिल्कुल. This is Trishakti. Trishakti. So we have Durga, and I'm sure your family, all the 3 sisters are Durga. Absolutely. As a mother, आपकी, I'm sure आपकी mother ने देखी है जंग as a, wife of the officer. But all the 3 sisters, to the nation, wow, this is commendable. वो उन्हें गर्व है. Was it your choice or मतलब आप तीनों बहनों की? आप ये सोचिए कि एक ऐसी लेडी जिनके हस्बैंड की डेथ वर्दी में हो गई हो, उन्होंने अपनी तीनों लड़कियों को फौज में ही भेजने की ठानी. उनके स्पाउसेस को फौज से. So everyone has a spouse जिनकी शादी हुई है, वो फौजी हैं. और मुझे लगता है कि ये एक माँ ही कर सकती है जी, जो ये कभी ना सोचे कि मैं बच्चों को कहाँ जंग में भेजूंगी जी. मेरे बच्चे कुछ भी सोच सकती है मदर, मन में डर आता ही है. लड़कों को भेजने के लिए भी आज देखे तो काफी बार मदर्स इमोशनल हो जाती है कि हम नहीं भेजना चाहते हैं, या 3 बच्चे हैं तो आप एक फौज में होते हैं या बाकी के 2 दे प्लान के ना भेजे फौज में. But in this scenario, all the 3 daughters are there, serving the nation on different levels. That's very commendable. I'm sure ये नव दुर्गा जो हमारा आज का ये this episode and this podcast is dedicated to your mother also. Yes. Absolutely. She is the true Durga. True Durga. Absolutely. True Durga. और आज तक वो इतने हिम्मत और जोश और जुनून के साथ खड़ी हैं कि अभी भी तीनों लड़कियों को वो कमजोर नहीं पड़ने देती, कभी भी नहीं. अच्छा. She keeps pushing us on कि हर दिन बेहतर करो और बेहतर करो. जी. So I'll ask a very very interesting question to you. आपको देख के ऐसे लगता नहीं है कि you were saying I was then. You look so young today also, ma'am. What is the secret to your fitness? Feel happy. Always tell yourself that I have yet to prove the best version of myself. जी. Always try to be a better version of yourself. कोशिश करते जाइए, जो करना है उसको ठानो. जी. I always feel age is just a number. Always. I'm 50 years old. And I always feel that मेरी लाइफ का बेस्ट अभी आना बाकी है. और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और वो पिक्चर we have yet to see. But that is on the lighter side. But I always feel that if you are positive within, if you always feel that there is a bigger cause to your life, जी. you will always feel fresh, you will always feel energetic, and you will always feel happy. What is the Fauji ka, the routine, for fitness? Tell us a little bit about that if you have. If you have seen a Fauji cantonment or army cantonment, you will see every Fauji's day begins with exercise. Every Fauji's day. चाहे वो serving है या चाहे retired है. जी. Morning में any form of exercise will be there. And thereafter you have a healthy, light breakfast. You go for office. जी. You come back. जी. तो in the just थोड़ा पीछे जाके वापस एक thought आया सवाल कि I'm sure women and men के exercises में फौज में तो कोई फर्क नहीं करते होंगे, जितना स्ट्रिक्ट यहाँ है वहीं पे आप women के लिए भी होगा. है ना? क्या कभी कोई फौजी आधी ट्रेनिंग के साथ फौज से बाहर निकल सकता है? Absolutely नहीं. नहीं ना? नहीं. तो जो ट्रेनिंग लड़कों को मिलती है वही ट्रेनिंग लड़कियों को मिलती है, क्योंकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कोई ट्रेनिंग एकेडमी ऐसी नहीं है जो मेल ऑफिसर को ट्रेन कर रही है
या फीमेल ऑफिसर को ट्रेन कर रही It's है. officer. नो, वो एक ऑफिसर को ट्रेन कर रही है. जी An officer has to be complete in all respects. जी So it has to be everything. Physical, mental, psychological fitness, mental toughness. उसमें boxing है, long distance runnings है, marching है, endless hours of marching है. Why? Because marching brings in discipline, Discipline. and teamwork and time management. Your studies of tactics हैं. आपको warcraft पढ़ाया जाता है. आपको हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है. आपको एटिकेट सिखाए जाते हैं. टेबल मैनर्स सिखाए जाते हैं. आपको लोगों के सामने बोलना सिखाया जाता है. आप कैसे खड़े होंगे. आपने कभी भी देखा होगा एक रेलवे स्टेशन में भी Officer. बहुत लोग चल रहे हैं. दूर से आप एक बंदा देखेंगे, बोलेंगे ये फौजी है, officer है. ये फौजी लगता है. वो क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर भर जाता है, वो उसकी जी. तरबियत में आ जाता है. जी एंड देन इट बिकम्स अ मसल मेमोरी. जी सो हर तरीके का हथियार चलाना सिखाया जाता है. अकेडमी में थे तो कंधे नीले पड़ जाते थे. रॉकेट लॉन्चर जब चलाना सीख रहे थे, हथियार कैसे उठाना है पहले आता नहीं था, लेकिन अकेडमी से निकलते निकलते वो हथियार भी एक जिंदगी का हिस्सा हो गया. जिंदगी का हिस्सा है. आंख बंद करके खोलना जोड़ना आप मुझे बोले, मैं मिनट में कर सकती हूँ. जी सो एब्सोल्युटली. व्हाट इज द मैसेज जो आज यंग वुमेन स्पेशली लड़कियां जो देख रही है और जो आज फौज ज्वाइन करना चाहे, सो व्हाट इज योर मैसेज फॉर देम? माई मैसेज टू एवरीवन हु इज लिसनिंग दिस शो जी. टुडे इज, आज सबको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी चीज को ठान लेते हैं तो आप ये पहली चीज कभी ना सोचे कि मुझे पहली बार में सक्सेस मिल जाएगी. जी और यदि आपको पहली बार में सक्सेस मिल जाती है, इसका मतलब अभी तक आप सीखे नहीं हैं. सीखे नहीं. तो सीखने के लिए कुछ फेलियर जरूरी होते हैं. जी हर फेलियर के बाद उठ के खड़ा होना जरूरी है. पूरे दम से दोबारा आगे बढ़ना जरूरी है. और जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर वो सक्सेस परमानेंट होती है. सो रेजिलियंस इज नेम ऑफ द गेम. डोंट से क्विट. कभी हार नहीं मानना. नेवर क्विट नेवर क्विट. इज द मंत्र. और दूसरी चीज जी. लड़कियों के लिए कि अगर कभी भी आपको इस देश के अंदर लड़की के रूप में पैदा होना था तो वो यही समय है. यही समय है. यही समय है. Absolutely. There was never a better time to be born As as a a girl. girl in this country. Never born as a girl who wants to go into armed Armed forces. forces. So this is the time. This is the moment. आगे बढ़ो. Superb, superb. So I think, फिलहाल मैम, just give us an idea. फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? How are you? So what's keeping you busy these days, nowadays? मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं तो एक फौजी हूँ और फौजी कभी खाली नहीं बैठ जी. सकता. Yes, I'm not wearing uniform now. And after leaving army, I did multiple roles in multiple organizations. But what is really keeping me alive these days is the training and development. Okay. तो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक टेड स्पीकर, एक जोश टॉक स्पीकर हूँ. आई एम अ लीडरशिप ट्रेनर. आई एम अ कॉर्पोरेट लीडरशिप Lovely. मल्टीप्लायर एंड आई एम अ वॉरियर माइंडसेट कोच. Lovely. तो ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं जिस भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को दिमागी तौर जी. पर मजबूत रहना सिखा सकूं, आई डू दैट. और इसी दिशा में आगे बढ़ रही हूँ. Absolutely. I think the mantra that we have got today from this is फौजी यहाँ होता है. बिल्कुल Mind is the place where you become a warrior. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. Absolutely. Thank you so much, ma'am, for joining us on the podcast. And we have a true Durga sitting with us here who has seen the border, who has been there, who has. Thank you for giving us, your special service to the country. Because of the army that we are all safe today and secure in our country, sitting in this beautiful studio at Red FM. So thank you once again, ma'am, for coming for Nav Durga. And we hope you keep on coming again and again to whenever we call you for our episodes I and will always be podcast. here. I will always be here. एक बार मेरे साथ बोलिए, जय हिंद. Jai Hind. जय हिंद की सेना. Jai Hind ki Sena. I think my team here is also really happy and we are all just listening to you continuously. Thank you so much. Yes. Thank you so much from Red FM and the team here. This was Henal Mehta. Thank you so much. जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए. ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए. जय हिंद.